खबरों में बात करते हैं पंजाब के खन्ना की, जहां पुलिस ने गैंगस्टर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग मामलों में शामिल 2 शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी खन्ना डॉक्टर दर्पण के आदेश अनुसार पुलिस टीम ने टेक्निकल और ह्यूमन सोर्स की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल और गोरा के रूप में हुई है, जिन पर फायरिंग व अन्य गंभीर मामलों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी आधुनिक कम्युनिकेशन ऐप का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देते थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था। पूछताछ में फायरिंग और पेट्रोल बम से गाड़ी जलाने की घटना का भी खुलासा हुआ है। फिलहाल दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में अन्य अहम खुलासे की संभावना भी जताई जा रही है। मानयोग सीएम साहब, मानयोग डीजीपी साहब ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਬਸਤੀ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 18 ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਖਟੀਕਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੋਰਾ 2 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 168/25 ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 61/25 ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। USA ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਉਰਫ ਸਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਿਸਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ। ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਗੋਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਿਲਿੰਗਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਫਾਇਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਮੋਡਿਊਲ ਤਾਂ ਬਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਸ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ 1 ਪਰਚਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਇਹ 2 ਪਰਚੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟਆਊਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਟਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਵੈਪਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਐਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਖੰਗਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 2025 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਇਹ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2025 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੂਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਦਾ ਆਸ਼ੂ ਵਿਜਨ ਮੁਦਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੰਡਿਆ। ਸਰ ਖੰਨਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਮਦਈ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਅਰੈਸਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨੋਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਆਦਿ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਵਿਕਰਮ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਟੈਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਬਸਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। और सामने आई अमरोहा जनपद के गांव डिडोली में बंदरों का आतंक से हड़कंप मच गया, जहां घर के बाहर बैठे 2 माह के बच्चे को बंदर उठाकर ले गए। परिजनों और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बंदरों से छुड़ाया, जिसके बाद परिवार में दहशत का माहौल है। घटना के बाद गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज हम पहुंचे हैं डिडोली गांव के अंदर, जहां बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। हर घर के अंदर बंदर ऐसे घुस जाते हैं जैसे वो उन्हीं का रहने का ठिकाना हो। इसी तरह और काफ़ी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, जो लोगों का मानना है, बताने वालों ने बताया है कि बंदरों की वजह से बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। एक नई घटना ये हुई कि बच्चा 2 महीने से भी कम उम्र का एक बच्चा था, उस बच्चे को बंदर उठा करके ले गए। घर में एक बच्चे के साथ बैठा था, वो लेटा हुआ था, मतलब बच्चा कोई ले वो उसको बैठा हुआ था, और बंदर आया, बंदरों ने उसको घेर लिया, आकर के उस बच्चे को अपने साथ उठा करके ले गए। पूरे गांव ने और मोहल्ले ने बड़ी मुश्किल से उनकी मदद की और उस बच्चे को छुड़ाया उनसे बड़ी मुश्किल से। बच्चे के काफ़ी चोट भी आई और बच्चे को उन्होंने ले आकर के अस्पताल में एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में बच्चे को अब घर तो ले आए हैं, ये कल की घटना थी, अब घर तो ले आए हैं, अब दोबारा फिर बच्चे, क्योंकि बच्चा काफ़ी रो रहा है और वो बच्चे को अब दोबारा लेके जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उन्हीं से। मामला क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है, डिडोली के रहने वाला हूँ। और मैं तो काम पे था, बच्चे उधर काम कर रहे थे दूसरी जगह। बड़ा लड़का हमारा दूसरे में घेर में घोड़ हो रही थी, ये गई हुई थी हूँ लड़के के पास। छोटे बच्चे को देते थे और ये चली गई थी हूँ को, तो बंदर इतना ही आ पाई, बंदर बच्चे से बच्चा ले गया, ले जाके गेट पे चढ़ के छत पे से बच्चों ने रोटी फेंकी। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की सामूहिक आत्महत्या के मामले पर अभिनेता सोनू सूद ने प्रतिक्रिया देते हुए बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन गेमिंग का दुरुपयोग कर बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। परिवारों को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। सोनू सूद ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत बताई है। से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया की जो गेमिंग है और वो दुनिया है उससे बहुत दूर रखना है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार के अंदर एक और ऐसा सदस्य है जो हमारा मोबाइल फोन, जो हमारी सोशल मीडिया है, जिनके साथ बच्चे हमसे ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, उनका भविष्य, हमारे देश का भविष्य बेहतर हो, तो सबसे पहले ये बैन लगाना जरूरी है। आप सोचिए कि उन्हें स्क्रीन नहीं, हमारा साथ चाहिए। बच्चों को मोबाइल नहीं, हमारी मौजूदगी चाहिए, डांट नहीं, हमारी बातचीत चाहिए। लेकिन हमारे पास भी कहाँ समय है उनके लिए, क्योंकि हमने उनके हाथ में एक सोशल मीडिया से लैस मोबाइल फोन थमा दिया है ताकि वो पढ़ते रहें, देखते रहें। पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टेक्नोलॉजी के लिए अपने बच्चों की जो जान है वो खतरे में डाल दें। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नहीं, खासकर कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए आज मिलकर ये कोशिश करें कि हम उस सदस्य को जो हमारे परिवार को बांट रहा है उसे थोड़ा सा दूर करें। इससे पहले देर हो जाए, मिलकर वो कानून बनाएं ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ रह सकें, सोशल मीडिया के साथ नहीं, ऑनलाइन गेमिंग के साथ नहीं। धन्यवाद। देवरिया में नारकोटिक्स विभाग और लार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से कंटेनर से 329 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है।
बरामद गांजे की कीमत करीब 1.64 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे देवरिया से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना लार एवं एएनटीएफ गोरखपुर की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 5/2/2026 को मुखबिर की सूचना पर चौरडीहा के पास से एक कंटेनर से 3 क्विंटल 28 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,64,00,000 रुपए है, के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र में यूट्यूबर शादाब जकाती पर एक महिला ने शोषण और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। झांसी में छात्रा ने सौतेले भाई पर अश्लील टिप्पणियां, पीछा करने और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बाद भी आरोपी की हरकतें नहीं रुकी। डर के कारण उसने स्कूल ही छोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें क्यों वायरल हुआ, क्या शिकायत किया आपने? वो जो मेरा सौतेला भाई है ना, वो हम लोग को मारपीट करता है और दूसरों से बोलता है कि मैं इससे शादी करूँगा। क्या नाम भाई सौतेले का आपके? रोहित विश्वकर्मा। हाँ, तो क्या कहता है शादी के लिए? हाँ, शादी के लिए बोलता है, दूसरों से बोलता है, मुझसे नहीं बोलता। और उसके चक्कर में हमारी पढ़ाई भी छूट गई, कोचिंग जाना बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया। उसका हम लोग को बहुत डर है। तो अब अभी वीडियो वायरल हुआ था वो? हाँ, उसी चक्कर में हुआ था, क्योंकि उसने हम लोगों को मारपीट किया था और दूसरों से बोलता है कि मैं इससे शादी करूँगा। कहाँ का वीडियो है वो मेरी दुकान का वीडियो, जहाँ मैं काम करती थी, वो काम भी मेरा छूट गया। आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि योगी जी से हमारा निवेदन है कि वो हम लोग के पास से दूर चला जाए। और आपने पुलिस से शिकायत की थी? पुलिस से शिकायत की थी, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। और फिर अभी कोई पुलिस वाले आए नहीं थे आपके पास? आए थे, एक रात उसको रखा भी था, फिर वापस छोड़ दिया। फिर उसने वही हरकत करी, हमारे मामा के बेटे को भी मारा था और सबको जान से मारने की धमकी देता है। उसके चक्कर में हमारी पढ़ाई, कोचिंग सब कुछ बंद हो गया। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए बंद हो जाए और फिर मैं। मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए नसबंदी अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा अलग अलग स्थानों पर आवारा कुत्तों को पकड़कर एबीसी सेंटर से नसबंदी कराई जा रही है। नगर आयुक्त के अनुसार प्रतिदिन करीब 50 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर खुशबू जायसवाल। मैं यहाँ नगर निगम मुरादाबाद के हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ एज ए वेटनरी सर्जन। मैं मुरादाबाद से तमाम ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें आवारा कुत्तों की चहलकदमी देखी और आवारा कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले भी किए हैं। इसको लेकर नगर निगम द्वारा आपके द्वारा क्या अभियान चलाया जा रहा है? नगर निगम द्वारा हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम जिस भी एरिया से डॉग्स का हमें कंप्लेन आता है, हम वहाँ से डॉग की कैचिंग कराते हैं और उसे हम अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जिसे कि हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट अगर वो सर्जरी करने के सारे टर्म्स फुलफिल करते हैं, देन हम उनकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम उन्हें 3 डेज मेडिकेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट हम सेम एरिया पे उसे लोकेट करवा के आते हैं। सर, कितने डॉग्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ लाए जा रहे हैं और कितने डॉग्स आपके द्वारा सर्जरी की जा रही है? अभी तो हमारा टारगेट है हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 50 डॉग्स, जो कि हम पर डे कैचिंग होती है हमारी 50 to 55 डॉग्स की हम कैचिंग करवाते हैं। उसके बाद हम उनकी सर्जरी करवाते हैं। हम अगर बात करें सावधानी की, तो क्या कुछ सावधानी लोगों को इन स्ट्रीट डॉग से बरतनी चाहिए? क्या कुछ एडवाइस दें? सावधानी तो हमें बहुत ही चीज़ों से लेनी पड़ेगी। पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि फर्स्ट जो रैबीज़ है, डिजीज़ है, ये बहुत बड़ा ज़ूनोटिक डिजीज़ है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हमें डॉग बाइट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्लीन कीजिए और विदिन 0 डेज, इट मीन्स 24 आवर्स के अंदर ही आप जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप एंटी रैबीज़ के शॉट्स लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डॉग्स को आप टच कीजिए, उनके सलाइवा या बाइटिंग का कोई भी प्रोसेस हो रहा, आप हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।
चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने दुकानों पर अभियान चलाकर दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है। नई मंडी थाना पुलिस ने पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक किया और प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न करने के निर्देश दिए। पुलिस ने कहा कि चाइनीज मांझा बेचते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज मेरे द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जैसा कि तमाम ग्रीवांसेस से शिकायत मिल रही थी कि जो मांझे से अभी लखनऊ में एक घटना गंभीर हुई है जिसमें मांझे से गर्दन कट जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ भी कुछ कंप्लेन आ रही थी कि मांझे यहाँ बिकते हैं। तो लगभग 6 स्थानों पर मेरे द्वारा आज रेड कराई गई है, चेक करवाया गया है, जिसमें मतलब की कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई है। फिर भी इसमें कोतवाली में, सिविल लाइंस में, मंडी में तथा खालापार में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। फारुखाबाद के नवाबगंज स्थित चेतन पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने रंग रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थिति लोगों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि मिथिलेश अग्रवाल ने शिक्षा और मेहनत की सफलता की कुंजी बताया है। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद 4 साल तक शोषण किया गया और पुलिस ने शिकायत पर सुनवाई नहीं की। युवती ने एसएसपी से न्याय की मांग की है। घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ मेरा रेप हुआ है। किसने क्या? उमेश शर्मा ने किया है। उमेश शर्मा आया वो इंस्टा पे संपर्क में आया था। उसने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ डेली बलात्कार। कौन है? हाँ, कई बार। ये है शिवा ढाबा वाला उमेश शर्मा। कहाँ रहता है? ये बुलंदशहर का रहने वाला है। अब क्या कह रहा है वो? अब ये नाट रहा है कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको पहचानता नहीं हूँ और मेरे पास प्रूफ है, फोटो है, हर चीज है। कितने दिन से आप? ये 4 साल हो गए मेरे साथ। 2022 में आया था। क्या 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 है इसने? हर रोज बलात्कार किया है, रोज आया, हर शादी का झांसा देके उसने मेरे साथ गंदा व्यवहार किया। और आपकी मुलाकात कैसे हुई थी और कितना समय हो गया? 2022 में मुलाकात हुई थी। कैसे मुलाकात? 4 साल हो गए। इंस्टा से हाय हेलो आया था उसका, मेरी बात हुई थी, बात वगैरह हुई थी और फिर उसने कहा कि जब तू मेरे पास आएगी मैं तब खाना वाना खाऊंगा। मेरे को लेके गया वो। फिर उन्होंने हाईवे पे गाड़ी लगाई, फिर उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया और उसका शिवा ढाबा है। कहाँ पर है शिवा ढाबा? ये टोल के पास है। कौन से? दोराला टोल पे। आपने थाना पुलिस की शिकायत करी? हाँ जी, मैंने नौचंदी में भी करी थी। उनके पास उसे बुलाया भी गया था, वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दोबारा आई हूँ यहाँ पर। फिर क्या आश्वासन मिला अंदर अधिकारी? अभी उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, ये कहा।